A very warm welcome to everyone who's joined us today. For those of you not familiar with Anveshan, Anveshan is a forum of researchers, academicians, journalists, and activists who share a commitment to the idea that human society needs to and can undergo a progressive social transformation that will eliminate all forms of oppression and exploitation. We've been active for many years, and in the past, we've organized many panel discussions, talks, and conferences on a range of social, political, and economic issues. And ever since the lockdown has been declared, we've organized a lot of talks online, which you can find on our YouTube channel. And if in case you want to find out more about Anveshan, you can write to us. I'll just post the email ID in the chat box. So we have with us two speakers today, and as you all know that under neoliberalism, agriculture in the third world and specifically in India has witnessed an increasing number of farmer suicides and displacement, and this has to do with the pressure of the market forces and also the policies of the government. And in India, it becomes all the more alarming because a majority of the workforce continues to be employed in agriculture. So and we've witnessed an increasing precarity in the last couple of years in agriculture. And recently, the Indian government has passed 3 bills which have rendered the farmer more vulnerable to the pressures of the market and other regions. So, and consequently, we've also seen a number of countrywide protests by farmers. So, we're here to talk about the 3 bills which have recently been passed against the larger backdrop of agriculture and food security under neoliberalism. So, we have with us 2 speakers today. We have with us Professor Utsav Patnaik, who is a Professor Emerita, Center for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University. And we also have with us Dr. Sanjay Madhav, who is the Joint Secretary of All India Kisan Sabha, Rajasthan. So we have the second speaker also with us, Dr. Sanjay Madhav. सबसे पहले तो मैं आपके अन्वेषण की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एक किसान प्रतिनिधि को आपके बीच में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं देख रहा हूँ बड़ा बुद्धिजीवियों का मंच है और मैंने भी डॉक्टर उत्साह पटनायक को सुना और बहुत ही जो है वो सारी बातें जो हम जमीन पर महसूस कर रहे हैं उनको उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल जो दृष्टिकोण से अपने सामने सारे जो पोल खोल कर रखी। सरकार जो कह रही है और जो वास्तव में हो रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो उन्होंने पूरा बताया, किस प्रकार से अमेरिकन साम्राज्यवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी हमारे देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाने के लिए काम कर रही है। वो मुझे अभी उनकी बात सुन करके और ज़्यादा उसमें मुझे स्पष्ट, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हम जमीन पर जो महसूस कर रहे हैं, जो हमारा जो किसानों का आंदोलन जो जिस चीज़ को लेकर के सड़कों पर है, वो मैं बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो देश का किसान है वो इस बात को जो है किसान और मजदूर जो है खास तौर पर अभी जिस प्रकार से जिस कोरोना महामारी का जो दौर है, जिस प्रकार से पूरा का पूरा देश और उस जैसा कि प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का जो उन्होंने एक बात कही थी, वो वास्तव में अभी नजर आ रहा है कि वो किस प्रकार से इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। वो अपने जो कारपोरेट जो आका हैं, जिनके धन के बल पर वो राजनीति कर रहे हैं, उनके हितों के लिए उन्होंने अभी तमाम जो मर्यादाओं को, राजनीतिक मर्यादाओं को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए जिस प्रकार से तीनों ये कृषि बिल जो है पहले अध्यादेश लेकर के आए और अध्यादेशों को जिस प्रकार से पार्लियामेंट में पास किया है, वो इस बात को दिखाता है कि उन्हें बहुत जल्दी है। उन्हें पता है, वो ये सोच रहे हैं, उनको एक गलतफहमी है कि चूंकि कोरोना काल है, अभी देश का किसान और देश का मजदूर इस कोरोना के संकट की वजह से संघर्ष के मैदान में नहीं उतर पाएगा, इसलिए वो जल्दबाजी में इसी समय इसको पास करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि हमने देखा कि देश का किसान अभी पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोशित है और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 250 से अधिक किसानों का एक संगठनों का एक समन्वय, इसमें किसान खेत मजदूरों के संगठन है, वो एकजुट होकर के इस किसान विरोधी सरकार की जो नीतियों का विरोध इसमें कर रहे हैं। आज का जो आपने विषय रखा है वो एकदम सही
समय पर आपने, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपकी इस टीम को कि आपने एक बहुत ही समसामयिक विषय और चुना है, और खासतौर पर जो नौजवान जो साथी जो आप जुड़े हुए हैं, आपको इसको बहुत ज्यादा इसको साथ, जैसा उत्साह जी ने भी कहा कि जो भुगत रहा है उससे ज्यादा जरूरत हम जो लोग जो लोग बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, जो नौजवान का बुद्धिजीवी नौजवान तबका है, उससे किसानों की इस लड़ाई में, मजदूरों की इस लड़ाई में सहयोग के अंदर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ये का पूरा जो खेल को, देश की पूरी कृषि व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में सौंप देने की साजिश है। ये एक देश, एक भाषा, एक बाजार, एक टैक्स, ये जो सब बातें जो एक सिर्फ एक नारे हैं ये, और लेकिन वास्तविकता इसके उलट वो है जो उत्साह जी ने बताई। वास्तविकता ये है कि ये जो बहुराष्ट्रीय निगमों का जो दबाव है, जो विश्व जो व्यापार संगठन का जो दबाव है, उसके दबाव में जो ये संधियां, इतनी कमजोर सरकार, ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की भाजपा आरएसएस सरकार है, ये कहकर के सत्ता में आए थे कि मनमोहन सिंह की सरकार बड़ी कमजोर थी, लेकिन इससे ज्यादा कमजोर सरकार जो है हिंदुस्तान के इतिहास में कोई, जो इस तरह के दबाव के अंदर जिस तरह ये सरकार आई है, इतने दबाव में कोई भी सरकार आज तक, हमने इससे कमजोर कोई सरकार किसानों ने देश के ने देखी नहीं। अभी इन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। देशी और विदेशी जो कारपोरेट पूंजी है, उसके हाथों में इन तीनों कानूनों के माध्यम से देश की खेती को, ये बिना देखे, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता उत्साह जी ने बताया कि हमारा देश जो है अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, ये एक अलग प्रकार का एक देश है। इस देश के अंदर गरीबी है, भुखमरी है। देश की 80% के आसपास जो है आबादी जो है खेत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेती पर निर्भर करती है। 86% किसान ऐसे हैं जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, या लगभग 50% के आसपास जो है वो 56% वो किसान जिसके पास खेती के भूमिहीन किसान है। बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, दलित, जिसके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन वो खेती करते हैं, खेती पे काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी खेती पर टिकी हुई है। उनके बारे में सोचे बिना ये हमारे देश की सरकार जो है सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर के आई है तीनों। और यहाँ तक सिर्फ किसानों की बात नहीं है, हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान जो तीनों कानून हैं आए हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आपने आंदोलन का एक विशेषता आपने देखी होगी कि पहली बार खासतौर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो हमारा आंदोलन है, इसमें पहली बार किसान, मजदूर और व्यापारी ये मिलकर के सड़कों पर है। और ये इसकी वजह क्या है कि ये जो हम जैसा देखेंगे, हमारा ये मानना है कि ये 1991 के बाद में जो नव उदारवाद की आर्थिक नीतियां जो देश के अंदर लागू की गई, उन नीतियों का ही विस्तार है, अगला चरण जो है, जिसको कि कांग्रेस थोड़ा झिझकते झिझकते आगे बढ़ा रही थी। और जब कांग्रेस इन नीतियों को लेकर के आई थी, तो अमेरिका के अंदर अडवाणी जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने वहां अमेरिका में स्टेटमेंट दिया था कि ये हमारी नीतियां कांग्रेस ने चुरा ली। वो उसको प्रूव करना चाहते हैं कि हम इन नीतियों के वास्तविक जो जो दावेदार हैं हम हैं। तो उन नीतियों को अगला चरण के रूप में लागू करते हुए ये नीतियां लेकर के आ रहे हैं। और ये नवोदारवाद की आर्थिक नीतियां जब 1991 में आई थी, जब इन्होंने खेती के क्षेत्र में इसको लागू करना शुरू किया था, तब अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम जो जनवादी संगठन है, उन्होंने तभी कहा था कि ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां किसी भी सूरत में भारत के कृषि जगत के लिए, भारत के किसानों के, मजदूरों के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। इन नीतियों के कारण देश के आम जनता का, किसानों, मजदूरों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि उस समय कुछ किसानों के जो संगठन थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको ये गलतफहमी थी। उन्होंने उस समय कहा नहीं साहब, ये तो बहुत, इससे किसानों को बहुत बहुत फायदा होगा। उस समय किसानों के कुछ नेताओं ने, हमारे जो प्रसिद्ध नेता हुए, उन्होंने टिकैत साहब जैसे, शरद जोशी जैसे, साहब इससे बहुत अच्छा हुआ, गंगानगर का कीनू जो है वो इंग्लैंड में जाकर बिकेगा, और जो है भरतपुर की सरसों जो है वो जाकर के अमेरिका में बिकेगी, किसान को बहुत फायदा होगा उसको खुला बाजार मिलने से। लेकिन वो आज जब हम देख रहे हैं, लगभग 30 साल के ऊपर उसको अनुभव हमारे सामने आज नव उदारवाद की आर्थिक नीतियों के हैं, हर 1 घंटे में लगभग 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और आज तो ये दुर्दशा हो गई देश की। पहले कम से कम 2014 से पहले आंकड़े तो आते थे, अभी जब से नरेंद्र मोदी की ये सरकार भाजपा आरएसएस की आई है, तब से आंकड़े भी आने बंद हो गए। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार कह रही है हमारे पास में आंकड़े भी नहीं है। तो ये हकीकत में उन नीतियों का जो दुष्परिणाम है जमीनी स्तर पर,
वो जो अभी बताया कि किस प्रकार से वो उनकी कोशिश है कि हमारा पूरा खेती का पैटर्न बदल दे, वो हमारे जीवन पद्धति को, जीने के तरीकों को बदलना चाहते हैं, हमारे खाने पीने की आदतों को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा सिस्टम जो अमेरिका और जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार से हम हमारी खेती को, हमारे जीवन पद्धति को बदले। ये आसान नहीं है, ये इतना जो है हम नहीं समझते कि वो कर पाएंगे। इसलिए इसके खिलाफ जो है पूरे देश में आज किसान सड़कों पर है। और ये जो हालत है देश की, इसके अभी मैं कुछ उदाहरण जो है आपके सामने इसके अभी जो अभी बाकी सैद्धांतिक सारा पहलू मैडम ने रख दिया, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता, उसके बारे में मैं उनसे ज्यादा अच्छी तरह बता भी नहीं सकता। मैं कुछ छोटे एक उदाहरण जैसे आपके सामने जो किसान भुगत रहा है। अभी इन्होंने कहा कि एक टैक्स, एक देश एक बाजार, एक टैक्स की बात की। अभी एक उदाहरण हरियाणा का है, जैसे अभी धान का जो समर्थन मूल्य है वो 1800 रुपये के आसपास, 1850 के 1800 के नजदीक में एमएसपी है। और उसका जो है आधे से कम में जो है वो धान बिक रहा है। तो किसी दूसरे राज्य के, अभी हरियाणा के अंदर धान का भाव थोड़ा ठीक है। तो जो मोदी जी कह रहे थे अपने भाषण में कि कहीं भी जाकर के बेच सकता है और किसान को बोला इससे मंडी में जाके माल बेचेगा। तो अभी कुछ किसान जो है अपनी ट्रॉलियां लेकर के हरियाणा के अंदर, 2 दिन पहले की बात है, अपनी धान बेचने पहुंच गए। तो उनकी ट्रॉलियों को उलट दिया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाकायदा घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर किसी दूसरे राज्य के धान को या किसी चीज को बिकने की अनुमति नहीं दी। तो ये कहने या कथनी और करनी में जो अंतर है वो हमें इसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बिहार है, जहाँ पहले से ये जो मंडी वगैरह एक्ट खत्म हो चुका है वहाँ पर पिछले कई साल से, और वहाँ पर भी बिहार में मक्का जो है 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है और एमएसपी उसकी 1850 रुपये है। इसके अलावा एक और भी जो हमें हमारे राजस्थान का अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही ज्वलंत और एकदम से आंखें खोलने वाला है। हमारे गंगानगर जिले में जौ की खेती होती है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। और जो हमारे पेप्सी कोला जो कंपनी है उसने जौ की खेती जो है ठेके पर जो है उन्होंने ठेका लिया और 1525 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया किसानों के साथ में, और किसानों ने जौ उगा करके पेप्सी को दिया। पहले साल में अच्छा किसानों को फायदा हुआ, 1525 रुपये प्रति क्विंटल मिले। तो किसानों ने अगले साल जब नेक्स्ट ईयर, इस साल जब जौ की खेती क्योंकि ज़्यादा हो गई, जौ ज़्यादा पैदा हो गया, तो कंपनी ने क्वालिटी और दूसरे बहाने बना करके वो जौ खरीदने से इनकार कर दिया। और इस साल अभी जो है वही जौ जो 1525 का कंपनी ने मना कर दिया और अभी बाजार में 1300 रुपये में वो जौ बिक रहा है और कंपनी को वो जौ 1200 रुपये में किसानों को बेचना पड़ा। ये यथार्थ जो है वो इनकी जो दावे है उससे कहीं भिन्न है, और ये यथार्थ जो है आने वाले समय में इस देश के किसानों के सामने ये भुगतना पड़ेगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये जो नीतियां है, ये हमारा जो मानना है, और साथ ही जैसे आप भी समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा जब 1991 से पहले छोटे व्यापारी खुदरा क्षेत्र में, बड़े मल्टीनेशनल्स को, कॉरपोरेट को खुदरा व्यापार में आने की अनुमति नहीं थी। तो उस समय सरकार कहती थी काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा थी, उसको खाद्य वस्तुओं के भाव पर नियंत्रण का कानून था। लेकिन अभी जो है जब बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, देसी विदेशी मल्टीनेशनल्स को खाद्य व्यापार में आने की अनुमति जब दे दी है, तो अभी हम देखेंगे कि इस वर्तमान जो 3 कानून पास किए हैं इसमें खाद्य वस्तुओं के मूल्य से नियंत्रण भी खत्म कर दिया है इन्होंने। अभी स्टॉक की सीमा भी खत्म कर दी है। अभी वो जो खाद्य वस्तुएं हैं वो उनके सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथ ही सरकार ने ये भी कह दिया कि अभी स्टॉक कितना भी जो है रखे उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी, कोई उसको काला बाजारी नहीं माना जाएगा। तो सीधा जो नजर है इस खाद्य कारोबार, जो लगभग 62 लाख करोड़ का एक अनुमान है कि हमारा जो खाद्य बाजार है, उससे पूरी तरह से, जैसा वो मैडम बताए थे कि वो गेहूं आप पैदा करो, आप तो जो कंपनियां चाहती है वो पैदा कीजिए और जाकर के पास में जो मॉल है वहां से ब्रेड खरीदे खाइए। ये चाहते हैं हिंदुस्तान को उस तरह का हिंदुस्तान बनाना। ये अभी उस पर ही पूरी के पूरा जोर है। अभी ठेका खेती के माध्यम से या सीधे जो खरीद के माध्यम से इन्होंने कहा है सीधे मंडी में खरीदोगे आप तो मंडी में 260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से टैक्स लगता है, 265 रुपये, 260 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से टैक्स है। मल्टीनेशनल कंपनी सीधा खरीद सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी भी सीधा नहीं खरीदने आएगी, कोई विदेश से आकर के बहुराष्ट्रीय कंपनी या अडानी अंबानी जाकर के सीधा खेत में
गेहूं खरीदने, वो भी कोई बिचौलिया पकड़ेगी। ये बिचौलिया हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बिचौलिया जो कानूनन रजिस्टर्ड है और जो जवाबदेह है कृषि मंडी के, कुछ कानूनी जवाबदेह बिचौलियों को हटा करके ये स्वतंत्र जो है खुले सांड जो बिचौलिए, उनको पैदा करने की साजिश है। मल्टीनेशनल कंपनियां हर इलाके में जो दबंग जातियों के जो होते हैं युवक, उनको अपना एजेंट बनाएंगी। वो एजेंट वहां पर जो है जाकर के किसानों के साथ में बार्गेनिंग करेंगे। जब जो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड बिचौलिए ही हमसे काबू नहीं आते, इनका कहना है कि बिचौलिए लूट रहे थे, उस व्यवस्था में बहुत सारी खामियां थी। जब उस खामी को दुरुस्त करने की जरूरत थी, उसे हम ठीक नहीं कर पा रहे, और पूरे किसान को और खेती को जो है ऐसे जो है, जो जिस प्रकार से जो ये बॉक्सर्स एक तरह से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो बिचौलिए होंगे, जस्ट लाइक बॉक्सर्स, वो आकर के जो है वो किसानों को, और छोटा किसान जब 86% किसान वो है जिसके पास में 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन है, जिसके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास में भंडारण की क्षमता नहीं है। वो अपना उत्पाद जो है खेत में पैदा करने के बाद में उसके पास में इतना ना तो उसके संसाधन है, ना उसके पास में भंडारण की क्षमता है कि वो उसको रख सके। उसको उसके अपने उत्पाद को तुरंत बाजार में बेचना पड़ेगा, उसको बेच कर अपनी जरूरत का बचा करके रखने के बाद में, जिससे कि साल भर खा सके, उसे उसको बेच करके उसको अगले खेती के लिए बीज खरीदना है, उसको अपने बच्चों की फीस देनी है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, अपना जो कुछ भी जरूरत जिंदगी जीने के लिए उसे उसको उसको पूर्ति करने के लिए उसे वो खेती कर रहा है, ना कि वो कोई लाभ कमाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए खेती कर रहा है। बड़ी संख्या हमारे किसानों की वही है। लेकिन ये जो अभी जो बिल आए हैं, वो उसके माध्यम से जो जो बिचौलिए आएंगे, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल जो आएंगे, वो किसान के साथ में बार्गेनिंग करेंगे। निश्चित रूप से किसान उसमें मारा जाएगा, उस बार्गेनिंग में किसान मरेगा, और उसको जो है शुरू में हो सकता है 1 आध साल, जैसे मैंने उदाहरण दिया गंगानगर के जौ का, 1 आध बार कुछ बढ़िया मिल जाए, लेकिन अंततोगत्वा उस किसान को जो है उस खेती को बर्बाद करने की ये तरफ ले जाएगा, और किसान जो है उसकी जो है किसान बर्बाद होगा। किसान के साथ में अभी जैसा बिहार और दूसरे राज्यों में जहाँ पर ये इस प्रकार के जो कानून वहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पूरा का पूरा मशीनीकरण जो है, निजी जब मंडी खत्म हो गई, निजी मंडियां होंगी, तो वहां पर बजाय मजदूरों से काफी सीधे ट्रॉली उलट के मशीन से वो उसका छटनी हो जाता है। इस तरह की जो है मशीनें जो हैं, तो जो मंडियों के ऊपर लाखों की संख्या में मजदूर जो है जो उससे रोजी रोटी कमाते हैं, जो खेत मजदूर गांव में है, वो जो उससे खेती के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारा का सारा जो है वो उनका जो है जीवन दशा खराब होने वाली। और जो छोटा व्यापारी, इसको बिचौलिया आज कहकर गालियां बक रहे हैं, जिस बीजेपी सबसे ज्यादा बिचौलिया गए, जिनके सबसे वो बिचौलिया जिसे पनपाया बीजेपी ने पिछले 70 साल में, और जिसने बीजेपी को पनपाया, अभी उन बिचौलियों को जो हटा करके उसकी जगह जो है बिना रजिस्टर्ड खुले सांड जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वो गाँव में दौड़ाने की ये कोशिश हो रही है। इसलिए इन नीतियों से, ये तमाम जो नीतियां इन पिछले दिनों में जो बिल आए हैं, चाहे कृषि के 3 बिल हैं, चाहे श्रमिकों के श्रम कोड जो बिल आए हैं 3 वो हैं, चाहे पर्यावरण अनापत्ति, ये सारे के सारे कानून मिलाकर के इस बात का संकेत देते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से देसी विदेशी कारपोरेट के सामने समर्पण कर चुकी है, और देश को एक ऐसी दिशा में, एक अंधेरी सुरंग में डालने की कोशिश कर रही है, जिसका कि कोई जो है कहाँ लेकर जाएगा देश को, इसके बारे में हम एक भयावह जो है दृश्य जो अभी बताया कि खाद्य सुरक्षा का पूरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जब किसान से सरकारी खरीद नहीं होगी, जब मंडियों में कोई आएगा नहीं बेचने के लिए, क्योंकि मंडी में टैक्स लगेगा 260 रुपये क्विंटल का, और जो सांड वाला जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वो सीधा बिना टैक्स से खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से मंडियों में कोई किसान बेचने नहीं आएगा, तो मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो निश्चित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार कह देगी, भाई क्या जरूरत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म हो जाएगा। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं होगी, तो एफसीआई के जो गोदाम है, उन एफसीआई के गोदाम में जो जो इकट्ठा करते हैं अनाज खरीद के, वो भी उसकी जरूरत नहीं रहेगी। जब वो नहीं रहेगी तो फिर एफसीआई गोदाम में जब अनाज नहीं होगा, तो फिर फूड सिक्योरिटी और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे देश की है, जिसके माध्यम से जो एक, जैसा कि शांता कुमार कमेटी जो 14 में सरकार मोदी जी की आई थी, तो उसके रिकमेंडेशन भी है, उसी रास्ते पर बीजेपी देश को ले जा रही है कि भाई आप ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म कर दीजिए, और सीधा डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर का जो, जैसा अभी बताया भी कि वो एक प्रयोग जो है देश में करना, उसका हमने उदाहरण अभी गैस सब्सिडी में देख रहे हैं, उससे बुरी तरह किसान पिट रहा है, उससे बुरी तरह गैस के जो उपभोक्ता पिट रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है हमारे देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और जो गरीब, जो आम जनता है, जो जो जिसकी
जिनकी खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम जिसको पेट, वो सारा का सारा एक खतरे में डालने की ये नीतियां हम देश के सामने हैं। और जो जिसका एक और भी जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं अभी, जैसा पेट्रोल डीजल के बारे में जब ये या बिजली के बारे में जब कंपनियां बनाई, जब इन्होंने बिजली बोर्ड को तोड़ करके, हमारे राजस्थान का मुझे याद है उदाहरण कि हमारे राजस्थान के अंदर बिजली बोर्ड थे, उन बिजली बोर्ड को तोड़ करके कंपनियां जब सरकार ने बनाई, राजस्थान में बीजेपी सरकार थी 15 साल 20 साल पहले, तो बोले कि बिजली बोर्ड घाटे में चलता है और बिजली जो है इससे जो है इसको कंपनियां बनाने से जो है सस्ती, अच्छी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली रेगुलर जो है किसानों को और आम जनता को मिलेगी। और आज हमारे अनुभव है कि वो सारी जो है बिजली की कंपनियां, अभी पूरे राजस्थान में बिजली के लिए आंदोलन चल रहा है कि पूरा का पूरा बिजली कह रहे हैं लाखों करोड़ के रुपए घाटे में है। वो घाटा किससे है? हर साल जो है बिजली की रेट बढ़ रही है, हर साल बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी बिजली कंपनियां घाटे में है। और पहली बार राजस्थान में तो एक नया उदाहरण है कि उत्पादन इकाइयां जो जो बिजली उत्पादन करती, सरप्लस उत्पादन राजस्थान में बिजली कंपनियां करती हैं, लेकिन उसके बाद में बिजली कंपनियां घाटे में, उत्पादन इकाइयां भी घाटे में। उत्पादन इकाई कैसे घाटे में हो सकती है? घाटे में इसलिए है क्योंकि जो सरकारी उत्पादन कंपनियां बिजली की हैं वो 3 रुपए पर यूनिट बिजली उत्पादन करके देती हैं और सरकार ने वो सरकारी उत्पादन इकाइयों को बंद कर रखा है। कारण क्या है कि अडानी और जो है जिंदल, उन्होंने प्राइवेट बिजली इकाई उत्पादन इकाइयां लगा रखी हैं, उनसे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो उन कंपनियों से 7 रुपए से लेकर 17 रुपए प्रति यूनिट सरकार बिजली खरीद के जनता को देगी, तो उस घाटे में आना स्वाभाविक है। सरकारी जो कंपनियों को बंद करेंगे, सस्ता जब बिजली दे रही है, और प्राइवेट सेक्टर, ये कुल मिलाकर के नव उदारवाद की आर्थ। और अभी 500 करोड़ रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आगे केस अडानी जी कि आपने बिजली चाहे ली या नहीं ली, आपको 500 करोड़ रुपए अडानी को देने पड़ेंगे। ये इस प्रकार की नए नए जो है ये सारा का सारा एक दूसरे से जुड़े हुए जो है ये चीजें हैं जो हमारे देश में एक भयावह स्थिति है। अभी हमारी सरकार कह रही है कि हम मीटर लगाएंगे, स्पेशल मीटर। जब अभी बिजली बिल पास किया है केंद्र सरकार ने भी, और उसके अंदर राजस्थान सरकार ने भी कहा कि हम जो घर में 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता है राजस्थान के, उनके घरों से बिजली के जो मीटर है, जो 800 रुपए का मीटर है, उसको हटा करके नए मीटर लगाएंगे। वो मीटर 8,000 रुपए का होगा, वो प्रीपेड मीटर होगा। उस मीटर को लगाने के लिए 1.5 करोड़ जो बिजली के उपभोक्ता है, उनके जो मीटर चालू हैं 800 रुपए के, उनको हटा करके और 8,000 रुपए का मीटर, वो आखिरकार वो सारा का सारा बोझ जनता के सिर पर पड़ेगा। तो ये सारा जो बिजली का बिल जो केंद्र लेकर के आया, पर्यावरण अनापत्ति कानून लेकर के आए, ये जो व्यापार संधियां जो सरकार कर रही है, और ये जो 3 बिल जो अभी खेती में आए, ये का सारा जो देश का कृषि व्यवस्था को तबाह करने की एक साजिश है। और इसे पूरी तरह से जो जिस प्रकार से आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने नील की खेती करवा कर नाम पर जिस प्रकार से साम्राज्यवादी गुलामी का जो हम जिस जुए में जिस प्रकार बर्बाद हुआ किसान, वो सेम आज स्थितियां जो है, तब एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटने के लिए, और आज जो है सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, जो विदेशी वित्तीय पूंजी और हमारा जो देश का जो इजारेदार पूंजीपति है, उनका आपस में जो गठजोड़ है, वो लगातार एक गठबंधन जो है गहरा होता जा रहा है। और वो एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके पास में एक औजार और भी है कि अभी पहले जब सरकारें कोई जन विरोधी नीति लेकर के आती थी, कोई भी कानून लेकर के आती थी, तो जनता के बीच में उस पर विरोध करने का एक अधिकार होता था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। अभी एक नया एक दौर हम देश की जनता देख रही है कि यदि आप उसके सरकार कुछ भी नीति लेकर के आती है, तो आपको अगर उसका विरोध करते हैं तो आपको वो कहते हैं कि ये देशद्रोही है, आप तो ये जो विरोध करने वाले हैं, ये क्योंकि सरकार का विरोध करना देशद्रोह है, आप राष्ट्रद्रोही है, आप जो है समझते नहीं है। अभी इनकी सरकार में कल तक मंत्री थी सिमरनजीत बादल, वो कल तक तो इनकी सहयोगी थी, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कहती है वो स्वार्थी हैं, वो तो जो है अपने स्वार्थों के लिए छोड़कर जा रही हैं। जो भी इस सत्ता के साथ में रहेगा वो देशभक्त है, वो राष्ट्र के हितैषी है, और जब भी ये कोई नीति लेकर के आएंगे, उसका यदि कोई भी विरोध करेगा, उसके खिलाफ बोलेगा, उसके गुण अवगुण बताएगा, तो वो उसे ये खारिज कर देंगे, उस यूनिवर्सिटी को खारिज कर देंगे, उन बुद्धिजीवी को खारिज कर देंगे, उस जनता को खारिज कर देंगे, और उसे देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये एक नया दौर इस देश की जनता देख रही, क्योंकि इनके पास में एक ऐसा एक फासीवादी संगठन का एक जो है जिस सरकार है, जो इसके जिसकी ये
राजनीतिक बाजू है भारतीय जनता पार्टी, उस 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 फांसीवादी संगठन जिसके राजनीतिक बाजू भाजपा है, उसके पास में एक ऐसा सांप्रदायिकता का और जात जो संकीर्णतावाद का ऐसा औजार है कि उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले 19 के चुनाव में इसको प्रयोग में ला के देखा, उससे पहले गुजरात में उन्होंने प्रयोग में ला के देखा। उन्हें मालूम है, वो ये महसूस करते हैं वो कि हम अपनी नीतियों के साथ में कारपोरेट की, पूंजीपति जगत की सेवा करेंगे, और जब भी जनता उन नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए लामबंद होने की कोशिश करेगी, हम उनके अंदर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करके या उनके अंदर जातीय क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके हम उन्हें डाइवर्ट करके इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़े। इस तरह की उनको गलतफहमी है। लेकिन हमारी ये कोशिश, हमारी आपकी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनके ये मंसूबे कामयाब ना हो। हम सब जो आप जैसे जो ये अन्वेषण की टीम है, जैसे सैकड़ों आप जो नौजवान बुद्धिजीवी यहाँ जुड़े हुए, आप लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे कि ये जो इस तरह के मंसूबे हैं, ये वास्तव में कई बार जब किसान जब ये बोलता है या मजदूर ये बात बोलता है कि ये नीतियां हमारे खिलाफ हैं, तो लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं शायद हम, क्या पता हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपके इस प्रोग्राम में आकर उत्साह जी को सुन करके आप लोगों के, तो ये कॉन्फिडेंस आता है किसान को भी, मजदूर को, कि नहीं, हम सिर्फ जमीन पर जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं, वास्तव में इसके पीछे कितना बड़ा गेम है, कितना बड़ा एक साम्राज्यवादी कारपोरेट पूंजी का कितना बड़ा एक गेम प्लान है। वास्तव में वो उससे एक ताकत मिलती है, एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, हम जो महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को अभी हम सबको मिलकर लड़ना है, और ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी एक जो है पूरी साम्राज्यवादी और पूंजीवाद देश के निगमों के खिलाफ लड़ाई है। ना सिर्फ ये देश की सत्ता के खिलाफ लड़ाई है, ये पूरी अमेरिकन साम्राज्यवाद की नीति में जो नवोदारवादी आर्थिक नीति है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके खिलाफ एक संघर्ष है। और ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, इसको जब तक व्यापक रूप में हम सब मिलकर के नहीं लड़ेंगे, इसको पलटा नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो खाद्य कारोबार है, इसमें ये जो अभी जिस प्रकार से जितनी उतावलापन है, इसके बहुत बड़े कारण है। क्योंकि ये अभी जो सादा जो अभी आया है, ये 3 कानून, खरीदना उसकी छूट, स्टॉक करने की छूट, कितना भी इकट्ठा करो, भाव पर कोई नियंत्रण नहीं। अभी इससे बड़ा कोई व्यापार हो नहीं सकता किसी भी पूंजीपति के लिए। इससे बड़ा कमाई का कोई आप 35 करोड़ रुपए खर्च करो, आपने खरीदा सस्ते में, किसान से सीधा खरीदा, स्टॉक की कोई सीमा नहीं है, आपके पास अकूत संपदा है। छोटा कारोबारी था, उसकी सीमा थी, वो 1-2 करोड़ का खरीद सकता है, 5 करोड़ उसकी लिमिटेशन थी। अभी अंबानी, अडानी, बहुराष्ट्रीय, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो लाखों करोड़ रुपए का जो है उनके पास में वो खरीदेंगे, खरीद के स्टॉक करेंगे, बाजार में कृत्रिम संकट पैदा करेंगे, भाव ऊंचे जाएंगे, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में 35 करोड़ का माल 70 करोड़ में बेच देंगे। इससे बड़ा खाद्य कारोबार पर कब्जा, इससे बड़ा मुनाफे का जो है ये जो है कोई, क्योंकि और ये ऐसा बाजार है कभी बंद नहीं होगा। खाना तो आदमी खाएगा, आदमी जिंदा रहेगा तो खाना खाएगा। किसान को पैदा करना पड़ेगा, किसान पैदा करेगा, और किसान पैदा करेगा, खाने वाला खाएगा, और मुनाफा जो है ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसमें वो कमाएंगी। वो एक कविता धूमिल की याद मुझे आ रही है कि वो, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, वो आदमी कौन है? जवाब में मेरे देश की संसद मौन है। तो ये वो जो धूमिल ने कविता में कहा है वो बात है कि ये रोटी से खेलने वाले लोग हैं, ये ना रोटी बेलेंगे ना ये रोटी पैदा करेंगे, ये जो है रोटी के साथ में खेलेंगे और देश की जनता के भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये, इसमें मैं इसको ये कहना चाह रहा था। दूसरा, इसमें जो मैं कुछ जो पॉइंट जिसमें मैं चाहता हूँ आपके सामने रखना, वो ये है कि इससे इन अध्यादेश जो इस बिलों का जो है कुछ प्रभाव जो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, जो मैंने बताई, इसके अलावा कि फसल की खरीदारी कंपनियां करेंगी और सरकार और मंडियों का इस पर नियंत्रण जो है पूरी तरह समाप्त धीरे धीरे हो जाएगा, और कंपनियां जो है अपनी शर्तों पर किसानों से खेती करा पाएंगी। जैसे मैं बताया, गंगानगर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो उसके उदाहरण और भी डूंगरपुर जिले में वहाँ पर कपास की खेती के अंदर भी इस प्रकार के हमने उदाहरण देखे हैं। वो अभी
सामने उसके आना शुरू हो गया। एक बार व्यवस्था कायम हो जाए तो इस आड़ में जो खरीदारी कंपनियां कर रही हैं वो समर्थन मूल्य करना भी सरकार घोषित करना बंद कर देंगी। तो ये पूरा का पूरा जो संकट है ये हमारे देश के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने है, और हम इसके खिलाफ कोशिश कर रहे हैं पूरी ताकत से लड़ने की। अभी राजस्थान के अंदर भी ये संघर्ष हमारा चल रहा है। अभी भारत बंद था 25 को, उसके बाद में अभी 2 तारीख को सभी पंचायतों में पंचायतों के चुनाव राजस्थान में हो रहे, इसलिए थोड़ा इसका अभी बीच में ये उस तरह का वो दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा राजस्थान भी क्या है, उसमें भिन्न भिन्न इससे अलग कई प्रकार के राजस्थान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थितियां हैं। गंगानगर का इलाका, हनुमानगढ़ एक नहरी इलाका है, कुछ इलाका है जिसकी स्थिति पंजाब हरियाणा से मिलती जुलती है। वहाँ पर आड़तीय सिस्टम है, ज़्यादा पंजाब से हरियाणा से मिलता जुलता व्यापारिक सिस्टम है, तो वहाँ पर आंदोलन की ग्रेविटी ज़्यादा है। कुछ इलाका है कुओं से जहाँ खेती होती है, बिजली के कुओं से खेती होती है, ये जयपुर के आसपास, लेकिन वहाँ पानी बहुत नीचा चला गया तो वहाँ पे उसमें अलग प्रकार की स्थितियाँ हैं। एक रेगिस्तान इलाका है जो बहुत बड़ा इलाका मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर सिर्फ बरसात के ऊपर निर्भर खेती है, बरानी खेती है, पानी नहीं है, वहाँ अलग स्थिति है। इसमें आदिवासी इलाका है, वहाँ बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है, बहुत छोटी जोत है। तो अलग अलग इलाकों में आंदोलन के स्वरूप भी अलग अलग है, और ये लड़ाई, लेकिन ये तय है कि ये लड़ाई आने वाले समय में एक देश की संप्रभुता को, देश की खाद्य सुरक्षा को और हमारे जीवन को बचाने की लड़ाई मान करके हमें लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है मेरा टाइम शायद पूरा हो गया है, और मैं अपनी बात को ये कहते हुए आपका पुनः धन्यवाद करते हुए कि आपने किसान संगठन के प्रतिनिधि को आपके इस फोरम पे बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड संजय आप वक्तव्य के लिए। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनके कुछ एक सवाल हैं। समीक्षा का इससे मिलता जुलता एक सवाल है। हम देखते हैं कि बीजेपी की पॉलिसी है जनता कुछ भी करे, कितना भी शोर मचाए, ये तीनों बिल पास करवा दिए पार्लियामेंट में। तो अब आगे आपका क्या प्लान है किसान आंदोलन को आगे लेके जाने का, क्योंकि सरकार तो किसानों के विद्रोह को सुन नहीं रही है, और इस पे अब ऑपोजिशन पार्टी से क्या चाहते हैं। और एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता सिद्धार्थ का, कि इन बिलों को लेकर वामपंथियों की राजनीति क्या होनी चाहिए और किसानों और श्रमिकों को की एक बड़ी एकजुटता इस बिल पर कैसे बनानी चाहिए। मैं इसको एक करके लेता हूँ। जैसे जी जी, जो पहले आपने कहा कि समझते क्यों नहीं है ना, जहां तक समझने की बात है, जैसा कि उत्साह जी ने भी कहा अपने वक्तव्य के अंदर कि हमारा जो किसान है, मजदूर है, उसकी जो स्थितियां हैं वो ऐसी कि वो बड़ा, उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही, वो पूरा उसका जीवन का जो दर्रा है, और कुछ इस तरह हमारे संस्कार भी इस प्रकार के हिंदुस्तान में कि हमारा पूरा जीवन पैदा होने से लेकर इतने बिजी रहते हैं हमारे बच्चा, जो खेती किसानी के अलावा टाइम बचता है उसमें हम और कामों में इतना व्यस्त अपने आप रखते हैं, जो धार्मिक संस्कार है, चाहे जातीय संस्कार है, चाहे सामाजिक कार्यक्रम, तो हमारे पास इन सब चीजों के लिए हम इसको अपने आप को, फिर दूसरा एक और भी चीज है कि हमें, हमारे कल्चरली हमको सिखाया जाता है किसान मजदूर को कि पढ़ाई लिखाई की तेरे को क्या जरूरत है, हमको तो खेती करना ही बस एक हमारा, और मजदूरी करना ही हमारा कर्म। तो इसलिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, समझ नहीं रहा है। आपने एक, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो सवाल दोनों आपने पूछे जोड़ करके, कि सरकार चाहे कितनी भी गलतफहमी में हो कि हम कुछ भी करो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब 2014 के अंदर मोदी की सरकार आई, आते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लेकर के आई। इसी तरह से एक बार लेकर के आई, 2 बार लेकर के आई, 3 बार लेकर के आई। लेकिन जब किसानों का प्रतिरोध खड़ा हुआ, और वो इतना बड़ा किसान का विद्रोह खड़ा हुआ कि जब उन्हें लगा, तो उन्हें वो आखिरकार वो कदम वापस खींचने पड़े, और वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सरकार को उसके कदम वापस लेने पड़े। पहली बार जो है, एक पहला पराजय भी मोदी सरकार की हम कह सकते हैं, किसानों के द्वारा ही उन्हें डिफीट दी गई। उसके बाद में हालांकि उन्होंने चालाकी करके उसी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को इनडायरेक्ट जो है स्टेट के अंदर, जो है राज्यों के अंदर, जो भूमि अर्जन कानून के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करा दिया। लेकिन अभी जो जनता जो है, जैसा कि अपनी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारा देश एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अद्भुत प्रकार का देश है। हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की
भाषा, संस्कृति है और तरह तरह की विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं को एकजुट करने के लिए आपको एक कोई बहुत आसान काम नहीं है। और अभी जैसा हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 250 से ऊपर जो संगठन है वो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ एकजुट हुए थे। तब से वो यूनिटी, वो आज वो संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है इसके खिलाफ। और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको, जो आपने कहा किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, ये सबके अंदर एक चेतना, और उसमें निश्चित रूप से आप लोग जैसे, आप जैसे जो नौजवान हैं, जो बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल है। आप लोगों का यदि सहयोग होगा, और तो मिडिल क्लास के अंदर, और मिडिल क्लास बहुत बड़ा एक हिस्सा समाज का है, तो निश्चित रूप से इसको हम आने वाले समय में एक बड़ा एक आंदोलन का रूप दे पाएंगे। और जहां तक आपने पूछा राजनीतिक पार्टियों से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमने भी जैसे कॉल दिया 2 अक्टूबर को, हमारा कॉल था 2 अक्टूबर को, हमने यही कॉल दिया तमाम गाँव के अंदर, ग्राम सभाओं के अंदर हमने प्रस्ताव पारित किए और ये प्रण लिया कि जो भी राजनीतिक ताकत है, जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे, जिन्होंने इस कृषि बिल का विरोध नहीं किया है, इसका समर्थन किया है, उनके खिलाफ हम जो है गांव गांव के अंदर जाकर अभियान चलाएंगे और उनको, उनका राजनीतिक जवाब उनको जो है, अभी जैसे पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो हमने कॉल दिया कि राजनीतिक जवाब उनको दीजिए, पंचायत चुनाव में उन्हें परास्त कीजिए। इसके अलावा वामपंथी दलों का, हम वामपंथी पार्टियां लगातार हमारे इस मुहिम में, आंदोलन में हमारे साथ में है। और जबकि मैं तो कहना चाहूंगा 1991 में जब नवोदारवाद की आर्थिक नीतियां, तब एकमात्र वामपंथी पार्टियां ही थी या हमारे जो जनवादी संगठन ही थे जिन्होंने ये कहा था कि ये नीतियां हमारे देश के हित में नहीं है। बाकी पूरी सबको गलतफहमी थी, सबको वहम था कि नहीं शायद कुछ भला होगा, लेकिन स्पष्ट जो है उस समय भी हमने कहा था कि हमें इन नीतियों से हमारे देश की जनता को कोई भला होने वाला नहीं है, अंततः नुकसान होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और हम आपके जो बहुमूल्य सुझाव है, जैसे आज आपके वार्ता में आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में एक बुद्धिजीवी तबका इन सब बातों पे आज सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, अपनी राय रख रहा है। ये बहुत बड़ी ताकत इससे हमें मिलेगी आंदोलन को। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के जो है, और जो जिस तरह का आप उत्साह जी को सुनकर बहुत सी चीजें जो है, जो नई चीजें जो है, ये सब बातें लोगों में ज्यादा से ज्यादा लेकर जाने की जरूरत है। अगर हिंदी भाषा में होता वक्तव्य तो और भी इसको हम ज्यादा से ज्यादा, और अंग्रेजी में भी इसको हम ट्रांसलेट करवा करके, इससे बहुत, क्योंकि अभी किसान ये सोच रहा है कि जैसे वो उसके लिए गिल्टी कॉन्शियसनेस भी है, उसको लग रहा है कि अरे यार ये ऐसे एक धर्म, भगवान की मर्जी है, हो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये वो क्या है, वो क्या गॉड क्या है, वो कि वो है ना, वो सीतारमण जी कह रही थी, वो गॉड, गॉड का किया तरह नहीं है एक्ट ऑफ गॉड। ये, हाँ एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी, एक्ट ऑफ भाजपा आरएसएस है। ये ये एक हमारे लोगों में एक होता है मन में, क्या शायद हम, ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, इस तरह की वार्ताओं से कि नहीं, ये हम सही सोच रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम देशभक्त हैं, हम देश के हित में सोचने वाले हैं। ये जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमारा वोट लेकर के गए थे, हमें ये कह करके लेके गए थे कि हम सबका भला करेंगे, किसान का विकास करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, वो लोग दोगले हैं, वो लोग दोहरा चरित्र, ड्यूल कैरेक्टर उनका है। ये विश्वास हमें उनके अंदर पैदा अभी धीरे धीरे हो रहा है, और ये निश्चित रूप से लड़ाई हम जीतेंगे। शुक्रिया कॉमरेड संजय। 2 सवाल और हैं। अब्दुल का सवाल है कि एमएसपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े किसानों के लिए है, छोटे किसानों को वैसे भी इससे कोई खास फायदा नहीं था, इसलिए अभी भी किसानों का आंदोलन सिर्फ बड़े किसानों का आंदोलन है जो कुछ राज्यों में ही सीमित है। इस पे आपका क्या कहना है? और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच कृषि में किसानों की पूर्ण संख्या में गिरावट आई थी। क्या आपको लगता है कि इन 3 विधेयकों की वजह से और नोटबंदी का जो असर है उसकी वजह से आगे भी एक निरपेक्ष गिरावट आ सकती है? और इन विधेयकों का कृषि मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा? ये जो पहला सवाल आप जो साथी ने कहा, वो मैं उसमें उसे कुछ हद तक सहमत है कि वो, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। एमएसपी, क्योंकि एमएसपी जो घोषित होती है, जैसा अभी बताया भी था उन्होंने काफी विस्तार से, कि एमएसपी जो घोषित हो रही है वो भी जो है जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है, जो रेट जो उसका है। लेकिन ये बात सही है कि वो जो छोटा किसान है, एमएसपी पहली बात तो घोषित जो है वो पर्याप्त होती नहीं है। दूसरी बात, एमएसपी
घोषित होने के बाद में भी समर्थन मूल्य पर, अभी ये मूंग है, मूंग 1 महीने से आया हुआ बाजार के अंदर, लेकिन अभी तक मूंग की कहीं कोई खरीद नहीं है, उसकी कोई एमएसपी घोषित नहीं है। तो ये सच्चाई है कि एमएसपी, लेकिन उस कुछ हद तक तो उससे लाभ कुछ मिलता ही है। वो ये इस रूप में है कि आप ठीक है, आप ज्यादा नहीं मिल पा, लेकिन कुछ हद तक उससे जो है राहत जो है, जो मध्यम किसान है, ठीक है, बड़े किसान को ज्यादा फायदा मिलता है, वो तो ठीक है। हमें जब राज्य प्रायोजित पूंजीवाद जो था 91 से पहले, उसका ज्यादा फायदा जो बड़े बिग जो बुर्जुआजी है, जो सामंती किसान भूस्वामी वर्ग है, उसने ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा उसका जो है होता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ये बात में उससे सही है कि एमएसपी का पूरा लाभ जो छोटे मध्यम किसान जो है। और जहां तक आंदोलन में आने का सवाल है, आंदोलन में आने के लिए जो चेतना जो चाहिए और जो समय और जो संसाधन चाहिए, वो निश्चित रूप से जो मध्यम किसान है या बड़ा किसान है, वो ज्यादा चेतनावान है। आज जब वो भी पीड़ित है तो वो मैदान में ज्यादा आ रहा है, सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे पंजाब हरियाणा में तो खाली किसान नहीं, पूरा का पूरा जो आड़त का व्यापारी है, और सारी खाली गंगानगर, मतलब हरियाणा पंजाब में नहीं, राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, आड़त का सिस्टम है। जो व्यापारी और किसान जो है और मजदूर, वो आपस में इस तरह का उनका लिंक बना हुआ है कि वो पूरा उसका, लड़की की शादी करनी है, उसकी फीस भरनी है, तो सब कुछ वो आपस में उनका इस तरह से एक इंटरलिंक जो सिस्टम है। तो इसलिए वो व्यापारी तो समझदार है, ज्यादा होशियार है, वो समझ गया कि इसका खतरा, किसान तो अभी समझ भी नहीं पा रहा है कि कितना बड़ा खतरा उसके जीवन पर खड़ा है। लेकिन वो व्यापारी को जैसे ही बिल आए, उसको पंजाब जो जो हरियाणा में खासतौर पर ग्रेविटी ज्यादा आंदोलन की, उसको पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है उसने, इसलिए उस इलाके में आंदोलन की ग्रेविटी ज्यादा है। लेकिन बाकी इलाके में भी धीरे धीरे जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग समझें और इसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़े, मजबूत हो। और निश्चित रूप से धीरे धीरे हम इसमें उम्मीद है कामयाब होंगे। और किसान, और इसका जो आपने आखिरी क्वेश्चन किया था किसान मजदूर का, आखिरी सवाल में थोड़ा मिस कर दिया। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। दूसरा सवाल था कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच कृषि में हाँ किसानों की पूर्ण संख्या में गिरावट आई थी। बिल्कुल, तो हाँ क्या आपको लगता है कि इन 3 विधेयकों और साथ साथ नोटबंदी का जो असर है, जो बरकरार है अभी तक, उसकी वजह से आगे भी किसानों की पूर्ण संख्या में गिरावट आ सकती है, और कृषि मजदूरों पर इन बिलों का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये सच्चाई है कि हो ये रहा है कि कृषि जो जो खेती, चूंकि अभी जो हमारे आंदोलन की मांग है लगातार कि किसानों का एक तो कर्जा माफी, तो हमारा मांग थी कि किसान, कोई भी मतलब ऐसा किसान जो है हिंदुस्तान में नहीं है, वो चाहे मध्यम किसान हो, सिर्फ बड़े भूस्वामी को छोड़ करके किसी भी गांव के अंदर, हमारा अनुभव है, हमने राजस्थान के सैकड़ों गाँव में, हजारों गाँव में सभाएं करते हुए पूछा भी, इसी गाँव में कोई ऐसा आदमी है क्या जिसके ऊपर कर्जा ना हो? एक भी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक भी गांव की एक भी सभा में एक भी आदमी ऐसा आज तक से हाथ खड़ा किया भाई मेरे पर कोई कर्जा नहीं। मतलब पूरा का पूरा किसान वर्ग कर्जे में दबा हुआ है। तो एक तो हमारी मांग ये, वो कर्जा अचानक कोई किसान ने कोई पैदा नहीं हुआ, ये कर्जा सरकार की नीतियों के बेस पैदा हुआ है। हालांकि किसान ये मानता है कर्जा ये मेरे नसीब में है, ये भगवान की देन है, इसलिए वो उस कुंठा में उसको बेचारा लेकर के आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वास्तविकता में ये जो उदारवाद की नीति आने के बाद में जिस प्रकार से खेती में इनपुट पर खर्चा बढ़ा है, और जो है खेती की लागत में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उस प्रकार नहीं हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ये कर्जा पैदा हुआ है। ये किसान समझ नहीं रहा है, इसलिए खेती जब घाटे का सौदा लगातार हो रही है, उसका इनपुट बढ़ गया और उसमें पैदा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे किसान खेती छोड़ रहा है। और ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि गांव में जो छोटे किसान है, जो भूमि छोटा सीमांत किसान है, वो धीरे धीरे खेती, क्योंकि घाटा हो रहा है, तो वो या तो खेत मजदूर बन रहा है धीरे, या फिर वो शहर में जाकर के मजदूरी कर रहा है, या फिर ये कर रहा है कि घर में 4 भाई हैं तो एक भाई खेती संभाल रहा है, बाकी 3 भाई जाकर के कोई दूसरा काम कर रहे हैं। ये यथार्थ है। और निश्चित रूप से ये सत्य, ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों बिल आने के बाद में ये संख्या में बहुत बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी, और बेतहाशा जो है लोग अपनी जमीनों से, अपनी खेतों से वंचित होंगे। और जो है ये बिल लाया इसलिए गया है कि इसका उद्देश्य ये भी है कि जब खेतों से किसानों को बेदखल करके और ठेकों पर लेकर के खुद के खेत में, क्योंकि वो उनको कभी तेरे खेत में ज्यादा फायदा नहीं, तुझे तो ऐसा कर तेरा खेत मुझे दे दे। गांव के गांव ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ठेके पर लेंगी, इस ठेका कानून के तहत उस अपने खेत में उस किसान को मजदूर बना करके काम करने के लिए मजबूर करेंगे। ये ये निश्चित रूप से होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड संजय।
आई थिंक सवाल इतने ही हैं, और समय की किल्लत की वजह से हमें भी ये टॉक जो है खत्म करनी पड़ेगी अब। सो बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड संजय, अपना समय निकालने के लिए इस टॉक के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वार्ता को हम आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, और आंदोलन को भी। मैं मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया। मैं चाहूंगा कि आप इसका आज का जो आपकी वार्ता का है और कॉमरेड उत्साह जी का जो वक्तव्य है, उसे खासतौर पर उसका अगर हिंदी में अनुवाद करके आप अगर उसको प्रचारित करें तो वो बहुत ही उपयोगी हमारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए हो सकता है। और आपका इसको मुहिम को आप जारी रखिए। आपका जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम आपको करेंगे, आप भी हमें कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल कॉमरेड संजय, हम बिल्कुल बेशक अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट है कुट्टी फिरदौस अमर राज्य की तरफ से, मैं पढ़ देता हूँ। कमेंट इंग्लिश में है। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय ब्रिटिश इज बीइंग यूज्ड वेरी वेल बाय डिफरेंट पार्टीज टिल टुडे। ओनली वंस वी एज अ होल as one start reacting against these policies will create a cycle of change that will reach those who rule us to the whims and fancies. Yes. What Indian companies and big agriculturalists did in African countries is very well example of the colonial remains that is embedded in the ruling class. The thought that maximum profit is to be generated, even if it is on the flesh and blood of common people. So thank you for the comment, and thank you everyone for participating in today's talk.